Namaste friends, let us study effect of dielectric on capacitance of capacitor. This is a parallel plate condenser, or we can say parallel plate capacitor. This is positively charged plate having charge plus Q. Negative charges induced on the near surface of this second plate, far surface connected to ground. This negative charge denoted by minus Q. Positive and negative both are having equal values. Dielectric slab of thickness T and constant K is introduced between these two plates of capacitor. Distance of separation between the plate is D, that is written here. Due to polarization, this surface is having negative charges, positive charges develop on this surface. So due to polarization, this is the electric field EP. E0 is the electric field in absence of this dielectric slab. That means between these two plates, air medium or vacuum is present. इन दोनों प्लेट के बीच मीडियम यदि एयर है या फिर वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैट टू प्लेट्स डिनोटेड बाय Eg. ठीक है, सेम इज रिटन हियर. The Q charge, QP charges due to polarization, K dielectric constant, E0 electric field between the plates of capacitor when with air as dielectric, EP electric field due to polarization. अब EP इस डायरेक्शन में ये ओरिजिनल फील्ड है इन एब्सेंस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक. तो देन इसी फील्ड को यहाँ से जाना था, लेकिन दिस मच फील्ड इज बैलेंस. Out of this E0 small part EP is balanced. Then resultant field inside this dielectric substance, it is E equal to E0 minus EP. तो ये रिड्यूस फील्ड है, ये रिजल्टेंट फील्ड है, नेट फील्ड है इनसाइड दैट डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन. कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज पर नेट पोटेंशियल ये फॉर्मूला है. अब चार्ज तो पता है, एक बार भी डिटरमाइन कर देते, देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन कैपेसिटेंस. ठीक है, अब यहाँ तक स्क्रीन पास करके ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट डाउन दिस. नाउ लेट मी रब दिस. अब मैं इसे रब करता हूँ. We know this electric field in absence of this dielectric, that means with the presence of air, this E0 equal to sigma upon epsilon 0. ठीक है, sigma is the surface charge density, that is charge per net surface area. This is epsilon 0. तो E0 equal to Q upon A epsilon 0. तो where A equal to area of each plate, surface area of each plate, surface area of each plate, हर एक प्लेट का सरफेस एरिया. ठीक है, surface area of each plate. We know the electric field inside the dielectric. डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली ये चार्जेस है, ये पोलराइज चार्जेस थोड़ा सा उसे बैलेंस करना. तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम. बट आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. So then epsilon equal to epsilon 0 k. तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक E equal to sigma upon epsilon, लेकिन epsilon replaced by epsilon 0 k. Now let us substitute this sigma upon epsilon 0, that is E0. This is written as sigma upon epsilon 0 into 1 by k. Sigma upon epsilon 0 is E0, तो ये बन गया E0 into 1 by k. And that's why E equal to E0 upon k is suppose equation number 2. This is suppose equation number 1. ठीक है, so let us run this. अब इन दोनों की जरूरत है आगे, so we need these two equations. Now let us determine potential difference across these two plates. So we know according to relation between intensity and potential, we know that electric field intensity is numerically dV by dr, potential difference per unit distance. The potential difference is intensity into distance. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आगे यूज करना है. T is the distance acquired by this dielectric. The remaining distance, that is d minus t, that distance is in air medium or in vacuum. तो वो distance क्या बनेगा फिर एयर के अंदर, d minus t. So that distance into electric field, that is potential difference due to the electric field in air, then potential difference due to the electric field in this dielectric. दो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना है. ठीक है, इस तरह से पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज PD across air medium. That means potential difference due to the field in air. एयर के अंदर जो फील्ड बाकी है उससे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस. तो एयर के अंदर इतनी स्पेस बाकी है, तो उस स्पेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर मीडियम, तो वो क्या आने वाला है, एयर मीडियम में इंटेंसिटी कितनी है, E0. पोटेंशियल डिफरेंस इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस इन द एयर. व्हाट इज द डिस्टेंस प्रेजेंट, तो ये वाला और ये एयर के अंदर है, तो कितना आएगा फिर d माइनस टी, क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग क्या आने वाला, इन द एयर. So intensity into distance over that air medium plus अब intensity inside this electric field intensity inside the dielectric is E. Distance over the dielectric is thickness of the dielectric. Now let us use this formula. So E0 in the bracket d minus t plus E replaced by E0 upon k into t. Since by equation 2 इस equation 2 का ये रीजन देना. So this is substituted by in equation 2. So this is V. Now let us take E0 common. E0 is common, then remaining is d minus t plus क्या आने वाला है, t by k. So this is PD across the two plates of capacitor. Now let us solve further. अब E0 को सब्स्टिट्यूट करना है by equation 1, इसे पुट करना है. Now let me rub this.
स्क्रीन पॉज करके यहां तक लिख लो। देन V इक्वल टू E0 अभी जो इक्वेशन 1 रख किया है वहां से क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इन द ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये बन गया पोटेंशियल का इक्वेशन। नाउ कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू चार्ज Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अस पुट दिस पोटेंशियल डिफरेंस हियर, नाउ लेट मी रब दिस। अब इसे रब करते हैं। Capacitance equal to Q upon V. What is V? This is the V. Q divided by epsilon 0 multiplied by at numerator D minus T plus T by K. ठीक है, make it cancel. Epsilon 0 divided by D minus T plus T by K. So this expression gives the effect of dielectric on capacitance of capacitor. तो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते तो जो कैपेसिटी बनने वाली दैट कैन बी ऑब्टेन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, स्पेशल केसेस this expression gives the effect of dielectric on the capacitance of capacitor. Now let us discuss some special cases. अब ये फॉर्मूला बन गया अपना। लेट अस राइट दिस एज द इक्वेशन 3। इसे एक नंबर देते थे, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। टी क्या है, तो ये थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ये उसका कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस कंसीडर करें। Now let us discuss some special cases. We just derived the formula for capacitance C equal to A epsilon 0 D minus T plus T by K. अब इसके अकॉर्डिंग स्पेशल केसेस, सपोज complete space, complete region between these two plates of condenser is occupied by this dielectric slab, then T will become exactly equal to T. So if between the two plates, या फिर if T equal to distance of separation between the two plates, then by इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर दे दिया था 3. So then by equation 3 the capacitance is T की वैल्यू डाल देना है D, ये D है तो क्या बन जाएगा एप्सिलॉन 0 D माइनस D प्लस, तो क्या बनेगा फिर एप्सिलॉन 0 K डिवाइडेड बाय D। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। बट आपको पता है यदि थ्रू आउट बिटवीन द टू प्लेट्स देयर एग्जिस्ट एयर मीडियम, तो कैपेसिटी क्या होती है, इसी फॉर्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हैं। जब अभी जो फॉर्मूला लिखा था C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाई K। अब दोनों प्लेट के बीच में एयर डाइलेक्ट्रिक है तो क्या आएगा 1,
के आएगा 1 तो K1 T इक्वल टू D बन जाएगा, तो फॉर्मूला ए एप्सिलॉन 0 अपॉन D बन जाएगा। तो लेट थ्रू आउट बिटवीन द टू प्लेट्स एयर इज प्रेजेंट, देन दिस फॉर्मूला विल बिकम ए एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये तो पता है आपको, पहले से हमने डिराइव किया। So let's C0 equal to capacitance when air and dielectric. So therefore C0 क्या बनेगा फिर? A epsilon 0 अपॉन D। लेकिन डाइलेक्ट्रिक यदि एयर है तो K क्या होता है? 1। Since K equal to 1 for air, ठीक है। तो therefore C0 equal to A0 by D, since K equal to 1 for air, तो एयर के लिए K बन जाता है 1। तो फिर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो देखो क्या बन रहा है। So by using these two equations, so therefore C upon C0 क्या बनने वाला है? So therefore C upon C0 is this equation divided by that। तो क्या इक्वेशन बनेगा? देखो A एप्सिलॉन 0 के अपॉन D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो अपने आप में ये क्या बन रहा है? K बन रहा है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन आ जाएगी। कैपेसिटेंस व्हेन गिवन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज डाइलेक्ट्रिक, सो दैट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So dielectric constant is the ratio of capacitance of a capacitor with given medium as dielectric to the capacitance of the same capacitor with air as a dielectric। ये again एक another definition बन रही। तो special case number 2, अब composite dielectric consider करते हैं। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स, तो उसके लिए डायग्राम बनानी जरूरी है। सेकंड केस कंसिडर करने के पहले यहां से एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कैपेसिटेंस विद गिवन मीडियम एज अ डाइलेक्ट्रिक, सेकंड केस के पहले यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे थे? दैट इज C इक्वल टू K इंटू Cg। Capacitance of the capacitor with given medium is dielectric is equal to K times capacitance when air is dielectric। K greater than 1 होता है, K is greater than 1, therefore C greater than C0। तो मतलब as compared to air, when any dielectric is placed between the two plates of condenser, capacity increases। Okay, so this is the effect of dielectric। स्पेशल केसेस में पहली केस हो गया, सेकंड केस। सेकंड के लिए फिर कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करना है, कैपेसिटेंस विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। सेकंड केस कैपेसिटेंस with compound dielectric। अब इसमें दो टाइप के अरेंजमेंट है, इक्विवेलेंट टू सीरीज कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें फर्स्ट है फिर equivalent to series arrangement।
if n number of dielectrics divide the distance between distance d between the two plates, distance d between the two plates in small parts, then arrangement is equivalent to series combination of n number of capacitors. Now let us see according to this diagram. अब ये है दो प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर, पहला डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, तीसरा डाइलेक्ट्रिक, डैश 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 डैश, ये n नंबर वाला डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब पहले की थिकनेस, दूसरे की थिकनेस, तीसरे की थिकनेस, पहले के लिए T1, दूसरे के लिए T2, तीसरे के लिए T3, डैश डैश डैश, लास्ट वाले के लिए थिकनेस Tn. First having dielectric constant K1, second having dielectric constant K2, थर्ड के लिए K3, लास्ट के लिए क्या Kn। ये टर्मिनल्स, दो टर्मिनल, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट डिस्टेंस, the whole distance, complete distance between the plates is divided into number of dielectrics। तो डिस्टेंस के छोटे छोटे पार्ट्स हो रहे, हर एक छोटे पार्ट में एक अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डैश 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 n डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। K1 K2 K3 दीज आर द कांस्टेंट्स। तो थिकनेस T1 T2 T3 डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है। सो ये अरेंजमेंट जस्ट लाइक ए सीरीज है। तो डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे छोटे छोटे पार्ट में, ऐसे सेपरेट कंडेंसर जैसे कि सीरीज में ज्वाइन कर दिए। तो सिंगल के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर सिंगल डाइलेक्ट्रिक क्या है, फॉर सिंगल डाइलेक्ट्रिक C इक्वल टू क्या होता है, ε0 डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी बाई। अब इसी का यूज करना है हमें। अब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या आएगा, P की जगह टोटल थिकनेस क्या आएगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 प्लस Tn, वो T की जगह पुट करने वाले हैं। अभी T बाय के एक सिंगल के लिए, तो पहले के लिए T1 अपॉन K1 प्लस दूसरे के लिए T2 अपॉन K2, इस तरह से ऐड करते जाना। तो याद रखो डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से, तो फिर ये अलग अलग कंडेंसर एज इफ दे आर इन सीरीज, तो हर एक को अलग अलग कंडेंसर कंसिडर करके सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे यूज करके फाइंड करने वाले। बाद में जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे तब उस मेथड से भी इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो लेट मी रब दिस, स्क्रीन पास करके लिख लो, डायग्राम ठीक से बनाओ, ठीक है। अभी से आगे एक्सटेंड करते हैं। तो कैपेसिटेंस फॉर n डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस और कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, तो C इक्वल टू क्या आएगा फिर ε0 डिवाइडेड बाय d माइनस टी है, लेकिन टोटल थिकनेस क्या बनने वाली है T1, अभी जो डायग्राम बनाई थी उसके अकॉर्डिंग T3 प्लस डैश 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 Tn,
प्लस क्या है टी बाय के, लेकिन पहले डाइलेक्ट्रिक के लिए T1 बाय K1, दूसरे के लिए क्या T2 बाय K2, तीसरे के लिए T3 बाय K3, डैश 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 लास्ट वाला क्या Tn बाय Kn। ठीक है, अब लेकिन वो डायग्राम यदि आपको याद है तो इससे छोटे छोटे पार्ट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये सब थिकनेस को ऐड करके T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐड करके क्या बनने वाला है, ये पूरा डिस्टेंस बनने वाला है। So all these dielectric slab togetherly acquire the whole distance। तो ये सब क्या आने वाला है, D आने वाला है। तो but T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn इक्वल टू क्या आने वाला है, D। So therefore C equal to A epsilon 0, D माइनस D क्या बनेगा 0, तो ये बाकी है T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 डैश 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 प्लस Tn बाय Kn। So this is the formula to determine capacitance when different dielectrics introduced such that complete distance divided into n number of parts। इस तरह से आएगा। अब इसमें और एक कंडीशन बन सकती है, T1, T2, T3 इन सब की थिकनेस, सभी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस सेम दे सकते हैं, तब क्या होगा फिर, ये फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, इसे रब करता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे कुछ नंबर देके रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। अब इससे कुछ नंबर दे देता है। सपोज दिस इज इक्वेशन ए। ठीक है, अब इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू डैश 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 Tn इक्वल टू क्या T, सभी एक ही, सब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस सेम। तो दो है तो क्या बनेगा T प्लस T, टॉइस T इक्वल टू D बनेगा, ये D है। तीन है T प्लस T थ्राइस T इक्वल टू D बनने वाला है। ऐसे n है तो देन इन सब के एडिशन क्या बनेगी, n इंटू T। ओके, इनकी एडिशन T प्लस T n इंटू T दैट इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, D। सबको ऐड करते हैं तो टोटल डिस्टेंस बनने वाला है बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, देयरफॉर T इक्वल टू क्या बनेगा, D बाय n। लेट अस पुट हियर, तो सबको T पुट करना है और फिर T कॉमन ले लेना है। ओके, सो देयरफॉर बाय इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ये से क्या आएगा देखो, अब इसे रख करता बाय इक्वेशन ये C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0, ये सब T इक्वल है उनको कॉमन ले लेते हैं। 1 बाय K1 1 बाय K2 1 बाय K3 डैश 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 1 बाय Kn। ठीक है, कौन सी कंडीशन अप्लाई करें, सब T1 T2 T3 की थिकनेस, सभी थिकनेस इक्वल है, सेम है तो T कॉमन, को T क्या पुट करना है, D बाय n। ये समझ गए, दो ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो टॉइस T, इसलिए n T। सो देन आगे क्या आएगा, फिर ये पुट करो, ये एप्सिलॉन 0 T रिप्लेस बाय D बाय n इन द ब्रैकेट 1 बाय K1 1 बाय K2 1 बाय K3 प्लस डैश 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 1 बाय Kn। एप्सिलॉन 0 अपॉन D इन द ब्रैकेट, अब ये ऊपर ट्रांसफर करो, n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन K1 1 अपॉन K2 प्लस डैश 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 1 बाय Kn।
दिस इज द सी। नाउ लेट मी रब दिस, इसे रब करते हैं। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये अपना फॉर्मूला है कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दैट मीन्स ये रहते डाइलेक्ट्रिक है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। और ये जैसे पूरा मीडियम, पूरा डिस्टेंस, दोनों प्लेट का पूरा डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक से भर गए, तो जब पूरे इसमें डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता था हम लिखते एप्सिलॉन 0 k अपॉन डी लिखते। इसके साथ कंपेयर करते तो ये बन जाएगा के इक्विवेलेंट। ओके, ये बन जाएगा के इक्विवेलेंट। इसीलिए फिर आगे इसे लिख सकते हैं हम C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, दिस इज के इक्यू। तो है के इक्यू where K eq is the equivalent dielectric constant of series combination equal to equivalent dielectric constant of series combination of n dielectrics of equal thickness। सभी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस इक्वल है तब, तो इसे आप Ks भी बोल सकते हैं, K फॉर सीरीज, K फॉर सीरीज ही बोल सकते हैं, ठीक है। K इक्विवेलेंट को Ks बोल सकते हैं बिकॉज सीरीज का है। और उसकी वैल्यू क्या फिर, और उसकी वैल्यू है ये वाली, तो दैट इज इक्वल टू क्या है, तो n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन k1, 1 अपॉन k2, 1 अपॉन k3 प्लस डैश 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 1 बाय kn। अब यहाँ से दिखता है क्या है, ठीक है। सो दिस इज द k इक्विवेलेंट। ओके, ये वैल्यू किसकी बन गई, इक्विवेलेंट की, ये वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये तभी अप्लाई करना है जब सभी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस सेम है, तब ये एप्सिलॉन 0 अपॉन डी बिना डाइलेक्ट्रिक की जो कैपेसिटेंस है वो यदि आपको पहले से दे दी तो ये बन गया C0, ये C0 बन गया। फिर ये फॉर्मूला ऐसा बन रहा है C इक्वल टू C0 इंटू के इक्विवेलेंट, बराबर। के इक्विवेलेंट ये वाला है तो C0 ये वाला है, ये याद रखो। ये लर्न करते, ये तो आपको C0 पता है, और के इक्विवेलेंट है हार्मोनिक मीन आ रहा है, इस तरह का जो एवरेज है हार्मोनिक मीन। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं। जितने इक्वेशन लिखे वो सब इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन दैट इक्वेशंस। सेकंड केस में पहला पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट कंसीडर करते हैं। सेकंड केस का सेकंड पार्ट कंसीडर करते हैं। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक हम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड सो दैट एरिया इज गेटिंग डिवाइडेड, देन अरेंजमेंट इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। The compound dielectric equivalent to parallel arrangement। ये कब बन सकता है देखो, these are the plates, dielectrics introduced so that surface area of the plates divided into n number of parts। ये पहला डाइलेक्ट्रिक, ये दूसरा, ये तीसरा, डैश 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 nth डाइलेक्ट्रिक। आपको पता है देयर इज नो डिवाइडेशन ऑफ दिस डिस्टेंस, डी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिस्टेंस वही है।
सेपरेशन डिस्टेंस, उससे नहीं डिवाइड हो रहा है, एरिया को डिवाइड कर रहा है। तो दिस कंप्लीट सरफेस एरिया इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ पार्ट्स, A1, A2, A3 डैश 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 लास्ट वाला AM, ठीक है, इसे एरिया। तो ये introduction of dielectrics divide the surface area, then arrangement is similar to the parallel combination of different capacitors। ये तो ग्राउंड है, ये dielectrics divide the area of plates, then arrangement, area मतलब surface area, arrangement is equivalent to parallel combination, equivalent to parallel combination of capacitors। हर एक कैपेसिटर का एक सेपरेट डाइलेक्ट्रिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, different capacitors, parallel combination of different capacitors। तो फॉर्मूला जो अपना फॉर्मूला है सिंगल डाइलेक्ट्रिक के लिए, उसे यूज करना है। तो वी हैव दिस फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला अपना, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसमें चेंज हो रहा है क्या, थिकनेस इक्वल टू क्या है D, तो ये T इक्वल टू डी बन जाएगा, ये भी D बन जाएगा। तो फिर क्या आने वाला है, T इक्वल टू D, लेकिन ये क्या आएगा फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश, ओके। T इक्वल टू D पुट करने वाले हैं, लेकिन K1 K2 K3 अलग अलग, ओके। थिकनेस तो हर एक की सेम, और A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN, ठीक है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C इक्वल टू A1 एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय, ये दोनों इक्वल बनने वाले, ये दोनों इक्वल, तो ये कैंसल, ये D अपॉन क्या आएगा के पहले के लिए क्या आएगा K1, ठीक है, प्लस ये 1 एप्सिलॉन 0 D बाय K1 हो गए। अब दूसरे के लिए क्या, फिर A2 एप्सिलॉन 0 अपॉन D बाय K, इस तरह से सभी के लिए हम लिखते जाने वाले हैं। यहाँ पे पहला दूसरा, ये पहले के लिए लिख दिए, दूसरे के लिए ये प्लस डायरेक्ट डैश 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 लास्ट वाला लिख देते हैं, प्लस AN एप्सिलॉन 0, तो T की जगह क्या आएगा D, ये भी T है तो कैंसिल हो गया, लेकिन इधर T लास्ट वाले का क्या K, इन सब के ऐसे एडिशन। So let me write closer, इसे क्लोज लिख देता हूँ, क्लोज करके लिखता हूँ। पहले के लिए क्या है A1 एप्सिलॉन 0 D बाय 0 प्लस A2 एप्सिलॉन 0 D बाय K2 प्लस एप्सिलॉन 0, इधर ये दोनों तो कैंसिल हो रहे, T डाल दिया D, पहले के लिए क्या डाल दिया K1 प्लस, अब दूसरे इस अरेंजमेंट के लिए
ए की जगह क्या, सेकंड के लिए A2, एप्सिलॉन 0 टी की जगह D K2 प्लस दैट लास्ट वाला AN ये सफिक्स में dy क्या K2। अब ये D तो डिनोमिनेटर में सेम है, लेकिन ये K1 ऊपर ट्रांसफर कर एप्सिलॉन 0 K1 अपॉन D A2 एप्सिलॉन 0 K2 अपॉन D प्लस डैश AN एप्सिलॉन 0 KN अपॉन D। ठीक है, आगे आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टडी करने वाले हैं, तब आप समझने वाले पैरेलल में एडिशन करो। ओके, लेट अस रब दिस, अभी से रब करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, क्या कॉमन है, एप्सिलॉन 0 अपॉन D कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डैश AN KN। ठीक है, ये बन गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब A1 A2 A3 सब एरियाज इक्वल है, तो क्या आएगा फिर, तो if A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 डैश इक्वल टू AN इक्वल टू कुछ मान लेते हैं A0, आप बोलेंगे इक्वल टू A लिखो, लेकिन ये तो टोटल एरिया है इसलिए A0 लिखते हैं। इन सब के एडिशन क्या आएगा फिर, 2 A0 प्लस A0 ट्वाइस A0, 3 है तो 3A0, देन A इक्वल टू N इंटू A0। ठीक है, तो अब सभी को इक्वल डाल दिया, therefore C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये सब इक्वल है, तो सब इक्वल है, लेकिन उनको क्या लिखा है A0, वो A0 आ जाएगा कॉमन, समझ रहे, इसे भी A0 इसे भी A0 इसे भी A0, तो A0 कॉमन, तो K1 प्लस K2 प्लस डैश लास्ट वाला क्या K0, बट फ्रॉम दिस व्हाट इज A0, A0 इक्वल टू टोटल एरिया A डिवाइडेड बाय N, तो एप्सिलॉन 0 A0 डाल देते A बाय N K1 प्लस K2 प्लस लास्ट वाला डायरेक्ट KN डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है D हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है A बाय N A0 के लिए, so this A0 is substituted as A by N। So now let us derive further। अब क्या आएगा देखो, C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D in the bracket K1 plus K2 plus K3 plus dash KN, थोड़ा क्लोज करते हैं, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डैश KN। ठीक है, तो ये और क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय N आ रहा है, डिवाइडेड बाय N। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, एप्सिलॉन 0 अपॉन D इन द ब्रैकेट there is a arithmetic mean of all these dielectric constant, ये सभी का क्या आ रहा है arithmetic mean। तो एप्सिलॉन 0 अपॉन D इसे बोल देते K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट कौन से कॉम्बिनेशन का, पैरेलल का। ओके, ये एप्सिलॉन 0 अपॉन D क्या है, दिस इज फॉर एयर मीडियम के लिए कैपेसिटेंस into K equivalent, where K equivalent is the arithmetic mean। ठीक है, इसे K फॉर पैरेलल भी लिख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में N डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल की एडिशन, पैरेलल के लिए
K1 प्लस K2 प्लस सभी के एडिशन डिवाइडेड बाई E है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन गया, ये मतलब यही है। सो दीज आर द स्पेशल केसेस। तो डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है डाइलेक्ट्रिक तो सीरीज, एरिया को डिवाइड कर रहा है तो पैरेलल, याद रखो।